more towards now the practical part of class 11 that we start with. Okay, so first and foremost in that is the rules of debit and credit. Okay, now doing this rules of debit and credit can be done from two aspects. ठीक है, होता है पहला और दूसरा होता है impersonal account. So first, when we talk about traditional accounting, in traditional accounts we have one is personal account, the second is impersonal account. Personal account focuses on कि क्या, it relates to a person, right? Anything relating to a person is of personal account, right? अब इसमें तीन और आते हैं, क्या? Natural, artificial person and representative person. So count हो जाता है, ठीक है? Then we have is the real account. Impersonal में कौन से होते हैं? Real account and nominal account. So what is a real account? Real account can be is divided into further two categories. One is tangible and the other is intangible. Tangible मतलब anything that can be felt or touched. या हमें कोई लॉस इनकर हुआ है, मान लो हमने मशीनरी बेची और उसमें हमें लॉस इनकर हुआ, जितने हमने खरीदी थी उससे बहुत कम में हमें बेचनी पड़ी. So that loss will also come under nominal account. यहाँ पे क्या इनकम जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव करा हमने, कमीशन. इफ वी आर सेइंग दैट वी हैव परचेज्ड अ मशीनरी, सो मशीनरी इज कमिंग इन, तो वो डेबिट होगी. इफ वी आर सेइंग वी हैव परचेज्ड सम गुड्स, तो गुड्स हमने आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, हमारे डेबिट होंगे. एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, से फॉर एग्जांपल इफ आई बॉट अ मशीनरी, ठीक है. अब मशीनरी में क्या दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? कैश. अब कैश क्या है? कैश एक पर्सन है? नो. कैश हमारा इनकम है या कोई एक्सपेंस है? नो. तो कैश हमारा क्या है? रियल. क्या मैं उसको फील टच कर सकते हैं? क्रेडिट. और अगर वो कम होती है तो वो क्या होती है? डेबिट. तो आपको अब यहाँ पे बस इसके अंदर ये आप समझ लो कि आपको LIC सिंपल फॉर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग व्हाट वी हैव टू फॉलो इज AE LIC. अगर ए और ई को मैंने साथ क्यों रखा? ए इज टुगेदर, उल्टा चल रही है, देख रहे हो आप, ये उल्टा चल रहा है, इसलिए आई हैव क्लब्ड AE टुगेदर एंड LIC टुगेदर. सो दिस इज द मॉडर्न रूल्स. सो करना क्या है, दैट रियली डिपेंड्स ऑन यू. आपको क्या समझ आता है बेटर. एंड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन. अगर मैं जर्नल एंट्रीज की बात करूँ तो नॉर्मल जर्नल एंट्री. Hi everyone, so welcome back to my channel. So today we will be doing what are the rules of debit and credit. So we have done all the theory part जो हमारे class 11th ही starting में आता है. Now that is talking about what is accounting, then what are the basic terms that we use in accounting, then what are the rules, what are the conventions, all those things we have done, and we have also made a video around it, right? Now we have also done accounting equation और उसके अंदर एक comprehensive question भी. Now this part we will now move ahead with this and we'll move more towards now the practical part of class 11 that we start with. Okay, so first and foremost in that is the rules of debit and credit. Okay, now doing this rules of debit and credit can be done from two aspects. ठीक है, one is your traditional rules, ठीक है, and the other one is the modern rules of accounting, right? Now first focusing on traditional rules. जो traditional rules थे वो more of English rules हैं and modern rules they are more of American rules, ठीक है. So आप दोनों में से कोई भी rule follow कर सकते हैं. Both are easy to understand. आपको वो जो समझ better आता है आप उसे follow कीजिए, ठीक है. Now it depends from person to person, student to student कि उसे क्या ज्यादा अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न. बट इन बोथ ऑफ देम आर करेक्ट एंड जो आपको आंसर निकालने में मदद करे दैट इज करेक्ट फॉर यू, राइट. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन द ट्रेडिशनल रूल. नाउ इन ट्रेडिशनल रूल्स हमें कुछ अकाउंट समझने हैं, ठीक है. वंस वी अंडरस्टैंड दोज अकाउंट्स ओनली देन वी विल बी एबल टू फॉर्म व्हाट डू वी से द रूल्स अराउंड इट, ठीक है. सो पर्सनल अकाउंट होता है पहला और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट. सो फर्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, इन ट्रेडिशनल अकाउंट्स वी हैव वन इज पर्सनल अकाउंट, द सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट फोकसेस ऑन कि क्या, इट रिलेट्स टू अ पर्सन, राइट. एनीथिंग रिलेटिंग टू अ पर्सन इज ऑफ पर्सनल अकाउंट, राइट. अब इसमें तीन और आते हैं, क्या? नेचुरल, artificial person and representative person. So what is a natural person? A natural person is one जो कि normal human being है, ठीक है, the creation of God. जैसे कि
when we are doing any transaction on accounting, हमारे पास आता है कि हमें इस इंसान ने इतना पैसा दिया या हमने इस इंसान को इतना पैसा दिया ना, that person can be Mr. A, Mr. Rohit, Mr. सूरी, Mr. whatever, ABC, XYZ, वो जो इंसान है, अगर हम उस इंसान के साथ डील कर रहे हैं तो that person will be representative of a natural category. Then artificial होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज आर्टिफिशियल. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे हम लिख देते हैं मिस्टर ए, मिस्टर मोहित, ठीक है. आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? सम रिप्रेजेंटेशन, लाइक से फॉर एग्जाम्पल अ गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, और अ बैंक, ठीक है, और अ म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन, एनीथिंग दैट इज कैन बी एनी group of people or an organization that you are having a business transaction with, ठीक है. Then you have the representative. Representative क्या होता है? Any expense अगर उसके आगे क्या लग जाए, outstanding या फिर prepaid, अगर ये दोनों शब्द किसी भी एक्सपेंस के आगे लग जाते हैं तो तब वो कौन सा बन जाता है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट एंड नॉट एन एक्सपेंस अकाउंट. फिर जो रूल फॉलो होगा टू अंडरस्टैंड कि हमें किसी भी ट्रांजैक्शन में डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो वो उस एक्सपेंस वाला रूल फॉलो नहीं होगा. वो कौन सा फॉलो होगा? इस वाला रूल, पर्सनल अकाउंट वाला रूल, ठीक है. देन वी हैव इज द रियल अकाउंट. इम्पर्सनल में कौन से होते हैं? रियल अकाउंट and nominal account. So what is a real account? Real account can be is divided into further two categories. One is tangible and the other is intangible. Tangible मतलब anything that can be felt or touched, ठीक है. तो हम किसी चीज को अगर छू सकते हैं या फील कर सकते हैं तो वो कौन सा हो गया? हमारा tangible. और intangible हमारा क्या हो गया? जिसको हम फील नहीं कर सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, tangible की बात करें तो क्या हो गया? मशीनरी, ठीक है, your stationery, ठीक है. Then it can be anything. This board, if I am talking about this, anything can be a part of tangible. Whereas intangible can be your copyright, ठीक है. It can be goodwill that you are dealing in, ठीक है. It can be your trademarks, etc. ठीक है. This is the second type of account, that is the real account. Then we have is the nominal account. The nominal account क्या होता है? Any expenses or income. What is it? Any expenses or losses एक साथ लिखे जाते हैं, ठीक है. और दूसरी तरफ क्या होता है? इनकम, हमारा कुछ इनकम हुआ या फिर हमारा कुछ गेन हुआ. एक्सपेंस जैसे कि सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर बिल, फ्यूल बिल, ठीक है. ये सब हमारा क्या है? वाटर बिल, वाटर सप्लाई बिल, ये सब हमारे क्या? एक्सपेंसेस. या हमें कोई लॉस इनकर हुआ है, मान लो हमने मशीनरी बेची और उसमें हमें लॉस इनकर हुआ, जितने हमने खरीदी थी उससे बहुत कम में हमें बेचनी पड़ी, सो दैट लॉस विल आल्सो कम अंडर नॉमिनल अकाउंट. यहाँ पे क्या? इनकम. इनकम जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव करा, हमने कमीशन रिसीव करा, वो क्या हो गया? हमारा इनकम. गेन क्या हो गया? अगर हमने मशीनरी बेची और हमने प्रॉफिट पे बेच दी तो वो हमारा क्या हो गया? गेन. सो दैट विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट. ये तो होगा अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. बट व्हाट आर द रूल्स? रूल्स की तो अभी तक हमने बात ही नहीं करी. सो व्हाट आर दोस? लेट्स हैव अ लुक एट दैट. हर एक अकाउंट का अपना रूल होगा और जब हमें कोई भी ट्रांजैक्शन होगी हम उसको उस रूल के बेसिस पे जज करके डेबिट या फिर क्रेडिट करेंगे, ठीक है. लेट्स हैव अ लुक एट दैट. नाउ लुकिंग एट द रूल्स ऑफ ईच ऑफ दीज अकाउंट्स. सबसे पहला क्या है? पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. मतलब अगर मिस्टर ए से हमने पैसा लिया है, सो व्हाट इज ही? इज ही अ गिवर और रिसीवर? ही इज अ गिवर. तो मतलब अगर हमने मिस्टर ए से पैसा लिया है तो उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. ऑन दी अदर हैंड अगर हम बोल रहे हैं कि हमने मिस्टर ए को पैसा दिया है, सो व्हाट इज ही? इज ए रिसीवर और अ गिवर? ही इज अ रिसीवर. सो डेबिट द रिसीवर, तो उसका अकाउंट क्या होगा? हमारा डेबिट, राइट. नेक्स्ट इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो भी हमारा, मान लो वी हैव bought in cash, so cash is coming in, so वो डेबिट होगा. If we are saying that we have purchased a machinery, so machinery is coming in, तो वो डेबिट होगी. If we are saying we have purchased some goods, तो goods हमने आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? हमारे डेबिट होंगे. And credit what goes out. Say for example,
इफ आई बॉट अ मशीनरी, ठीक है। अब मशीनरी में क्या दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो मशीनरी अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और दूसरा कैश पे ली होगी तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। सो मशीनरी इज अब सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या है वो मशीनरी, क्या है मेरा रियल अकाउंट में टैंजिबल। इज इट मिस्टर ए? मशीनरी इज मिस्टर ए? नो। क्या मशीनरी एक्सपेंस है या इनकम है? नो। मशीनरी क्या है? फिर क्या बचा हमारा, क्या है मशीनरी? इट्स अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन सा है? क्योंकि मैं टच कर सकती हूँ मशीनरी को, तो वो कौन सा है मेरा? टैंजिबल। सो अगर मैंने मशीनरी कैश में खरीदी है तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, मशीनरी और कैश। मशीनरी अगर टच कर सकती हूँ रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो मतलब मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। अब कैश क्या है? कैश एक पर्सन है? नो। कैश हमारा इनकम है या कोई एक्सपेंस है? नो। तो कैश हमारा क्या है? रियल। क्या मैं उसको फील टच कर सकती हूँ? यस। तो वो क्या मेरा हो गया? टैंजिबल। So credit what goes out. So cash is going out. So what we will do? We will credit the cash. So this is how we are going to think each and every transaction and then we will write the journal entry. Then nominal account में क्या होता है? Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. For example, salaries paid. Salaries में paid करने में salaries क्या है मेरा? Expense. तो क्या होगा? Expense को debit करना है तो salaries account will be debited. On the other hand, अगर मेरा है कमीशन रिसीव्ड तो कमीशन क्या है मेरा? इनकम। तो वो क्या होगा? क्रेडिट। सो कमीशन रिसीव्ड विल बी क्रेडिटेड। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन व्हेन वी आर गोइंग टू थिंक फ्रॉम द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट। अब एक बार हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडर्न रूल्स क्या हैं और उसके बाद वी विल ट्राई टू सॉल्व वन कॉम्प्रिहेंसिव जर्नल एंट्री क्वेश्चन कीपिंग इन माइंड दीज rules of accounting. Okay, let's have a look at that. Now let's focus on the second way of understanding the rules of debit and credit, which is modern rules. अब इसमें हमारा बहुत सिंपल चलता है, we don't have to think about the different. सबसे पहले ये नहीं सोचना कि कौन सा अकाउंट है, फिर उसके बाद उसके अकाउंट समझने के बाद उसका रूल लगाओ फिर डेबिट क्रेडिट, और नहीं, यहाँ पे आपको बस कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको इन 5 कैटेगरी में से एक में डाल देना है। क्या वो एसेट है, क्या वो एक्सपेंस है, क्या वो लायबिलिटी है, क्या वो इनकम है, या फिर क्या वो कैपिटल है। सो AELIC सिंपल फॉर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग व्हाट वी हैव टू फॉलो इज AELIC। अगर A और E को मैंने साथ में रखा, AE इज टुगेदर बिकॉज अगर AE बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट, और अगर कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। मतलब अगर एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो वो क्या होंगे? डेबिट, और अगर एक्सपेंसेस पे कर दिए जाते तो एक्सपेंसेस कम हो रहे तो वो क्या होंगे? क्रेडिट। ऑन दी अदर हैंड LIC को हम एक साथ रखते हैं। अगर लायबिलिटीज, इनकम या कैपिटल बढ़ती है तो वो क्या होती है? क्रेडिट, और अगर वो कम होती है तो वो क्या होती है? डेबिट। तो आपको अब यहाँ पे बस इसके अंदर ये आप समझ लो कि आपको इसमें बस डिवाइड करना है, कि समझना है ये जो चीज मेरे सामने आई है क्या वो एसेट है, क्या वो एक्सपेंस है, क्या वो इनकम है, क्या वो लायबिलिटी है, या वो कैपिटल है। विद दिस वी विल एंड दिस मॉडर्न अप्रोच। हमें बस ये समझना है कि क्या है। अगर AE बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है और कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। LIC अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है और कम हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। तो मतलब उल्टा चल रही है, देख रहे हो आप, ये उल्टा चल रहा है। इसलिए आई हैव क्लब्ड AE टुगेदर एंड LIC टुगेदर। सो दिस इज द मॉडर्न रूल्स। सो करना क्या है, दैट रियली डिपेंड्स ऑन यू। आपको क्या समझ आता है बेटर, एंड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन। अगर मैं जर्नल एंट्रीज की बात करूँ तो नॉर्मल जर्नल एंट्री का क्वेश्चन तो आता ही है, वो आएगा। उसके अलावा अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो वो ट्रेडिशनल रूल्स के ऊपर आएगा, मॉडर्न रूल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन खास बनता नहीं है। सो अगर वो आपसे पूछते हैं कि ये कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, तो वो किसका अकाउंट का पार्ट है? ट्रेडिशनल रूल्स का पार्ट है, मॉडर्न का नहीं पार्ट है, ठीक है। फिर उसके अंदर रूल क्या फॉलो होते हैं वो आपको याद करना है। तो अगर आपका थ्योरी क्वेश्चन आता है फ्रॉम योर दिस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो वो सिर्फ ट्रेडिशनल से ही पूछा जाएगा, मॉडर्न से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टूड हाउ वी आर गोइंग टू डू द रूल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट। नेक्स्ट वी विल डू वन question of journal entry, not one, but we'll start from the basics and then we'll move ahead with a comprehensive question of how to make journal entries and how to solve the entire journal entry, so that you get an idea of how to start with the practical part of accounting of class 11. Okay, so please like, share and subscribe to my video and give lots and lots of love. Thank you.